नमस्कार। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं अबाउट द ऑप्टिकल फाइबर। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स के, और ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। देखिए, ऑप्टिकल फाइबर के बारे में हम सभी जानते हैं। आजकल जितना भी कम्युनिकेशन और जितना भी आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, ये सब ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू है। ऑप्टिकल फाइबर्स बहुत थिन वायर होता है, माइक्रोमीटर साइज का, एंड दे आर मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। कौन सा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल? जो कि ट्रांसपेरेंट होगा, एंड यूज टू ट्रांसमिट द लाइट सिग्नल फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। राइट, फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशंस? देखिए, ऑप्टिकल फाइबर वायर से पहले या ऑप्टिकल फाइबर से पहले हम मेटेलिक वायर्स यूज करते थे, बट ऑप्टिकल फाइबर्स को यूज करने के क्या क्या एडवांटेजेस है? Optical fibers are used to send the huge amount of information from the long distance. For example, you want to communicate from one city to another city, then you can send the information through the optical fiber with some advantages. वो advantages कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो communication बहुत fast होगा कि because you are using light as the guiding medium inside the optical fiber, or you are sending your signal into the form of light signals, and light signals travel with the speed of light, that is the maximum possible speed, 3 into 10 to the power 8 meter per second. So the communication becomes very fast in optical fibers. And bandwidth is also very high in optical fiber communications. Even you can transmit millions of signals at a single time. And losses, yes, during the optical fibers communications, we cannot avoid the losses, but losses are very few, very less losses are there in optical fiber communications. And optical fibers are lightweighted. So to carry or to install the optical fibers becomes easy because they are lightweighted. And we also have other advantages like optical fibers, they are safe, they can work in any environment. Okay. So now the structure of optical fiber. Okay. In structure of optical fiber consists three components. The one is core, cladding, and the sheath. So the innermost part of the optical fiber is known as core. The innermost part of the optical fiber is known as core. This one is the core. And it is surrounded by cladding, and the outermost part is sheath or the plastic jacket. Okay. And optical signal is launched within the core only, and it travel within the core on the basis of total internal reflection. So the principle of optical fiber is total internal reflection. The principle of optical fiber is TIR, total internal reflection. Obviously, the core is the innermost part of the optical fiber. So it has certain diameter. It may have diameter from starting from 5 micrometer to 125 micrometer. So the innermost part is core. This one you can, yeah, this one is the core, innermost part. Okay, so it diameter may be 5 to 125 micrometer, and it is surrounded by cladding. This one, yes, this is surrounded by cladding. Again, it is having diameter varying from uh, 50 to 300 micrometer, and the outermost part of this fiber is sheath, that is plastic jacket. This one is the plastic jacket. So just I have shown here the picture of optical fiber. The diagram is here. You can see the innermost part is core. It is surrounded by cladding, and the outermost part is sheath or the plastic jacket. Right. So these are the three components of optical fiber: core, cladding, and sheath. Sheath or the plastic jacket is the outermost cover of the optical fiber. It is just a plastic which keep the optical fiber safe from the worst environment. And the principle of optical fiber is based on total internal reflection. For that, if core is having its refractive index n1, okay, and cladding is having its refractive index n2, then n1 must be more than n2. This is the condition of total internal reflection. So total internal reflection को हम डिटेल्स में समझ सकते हैं। देखिए,
ये कैसे काम करता है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, यहाँ पे देखिए मैंने 3 डायग्राम्स आपको दिखाए हैं। ये N1 मीडियम है, ओके, दिस इज N1, दिस इज N2, N1 इज मोर देन N2। इन तीनों डायग्राम में N1 इज मोर देन N2, इसका मतलब N1 डेंसर मीडियम है और N2 रेयर मीडियम है, राइट। तो देखिए और ये नॉर्मल है, N डेस ये नॉर्मल है। तो यहाँ पे आपने सिग्नल को लॉन्च किया इंसिडेंस एंगल थीटा आई पे। सो जैसे ही ये लाइट रे डेंसर टू रेयर में जाएगी तो इट विल मूव, इट विल ट्रेवल अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसको जाना स्ट्रेट चाहिए थे बट ये देखिए अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई है, ओके। अगर आप इंसिडेंस एंगल को और बढ़ा देते हैं, देखिए थीटा ही आपने और बढ़ा दिया, तो अब क्या होगा, आपने इतना बढ़ाया कि ये यहाँ पे ग्रेस करने लगी, देखिए ये जो लाइट यहाँ पे रिफ्रैक्ट होके गई थी, वो रिफ्रेक्टेड लाइट जो थी, जो रे थी, वो यहाँ पे ग्रेस करने लगी, देखिए। यानी कि रिफ्रैक्टिंग एंगल की वैल्यू कितनी हुई, 90 डिग्री। तो इसी को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे इंसिडेंस एंगल किसके बराबर है, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है किन्हीं भी दो मीडियम्स के बीच में, साइन थीटा सी इक्वल टू N2/N1, इसको हम डिफाइन करते हैं। अब आप देखिए, अगर आप फर्दर थीटा आई को बढ़ाते हैं, इस क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा कर देते हैं, अगर इफ थीटा इज मोर देन थीटा सी, क्रिटिकल एंगल से अगर आपने ज्यादा कर दिया, तो अब क्या होगा, ये सिग्नल उस मीडियम में जाएगा ही नहीं, यहीं से वापस आ जाएगा। तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। पहले रिफ्रैक्ट होके यहाँ पे जा रही थी N2 मीडियम में, रेयर मीडियम में, अब ये रेयर में नहीं जाएगी, ये वापस डेंसर मीडियम में वापस आ जाएगी, राइट। सो इस कंडीशन को हम बोलते हैं TIR। ये कंडीशन किसकी होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। सो व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, राइट, in that case the light ray reflected back from the same medium, this is known as total internal reflection। एंड ऑप्टिकल फाइबर में जो जितना भी ट्रांसमिशन होता है वो सब इसी प्रिंसिपल पे देखिए काम करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर का मैंने एक डायग्राम दिखा है यहाँ पे, ये ऑप्टिकल फाइबर है, दिस इज ऑप्टिकल फाइबर। तो यहाँ पे सिग्नल को लॉन्च किया गया, देखिए ये सिग्नल गया, यहाँ पे कोर क्लैडिंग का इंटरफेस है, यहाँ पे ये कोर है और ये क्लैडिंग है। तो फिर TIR हुआ, यहाँ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगे, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन होगा। फिर इस सरफेस पे अगेन कोर क्लैडिंग इंटरफेस है, फिर TIR हुआ। तो जिग जैग मोशन में ये कोर के अंदर ये जो सिग्नल है ट्रेवल करता रहेगा और यहाँ पे डेस्टिनेशन तक इस तरीके से ये चला जाएगा, राइट। सो TIR की दो कंडीशन है, वन, the light ray should travel from denser to rare medium, and the other is that the angle of incidence should be greater than the critical angle। तो यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर के लिए देखिए, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 होता है, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 होता है। तो पहली कंडीशन हमने लिखी है, देखिए N1 मस्ट बी मोर देन N2, और दूसरी कंडीशन हमने लिखी है थीटा आई शुड बी मोर देन क्रिटिकल एंगल। N1 और N2 यानी कि कोर और क्लैडिंग के लिए जो क्रिटिकल एंगल है, यहाँ पे इंसिडेंस एंगल की वैल्यू उस एंगल से ज्यादा होनी चाहिए TIR कराने के लिए। सो द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और उसी को हमने यहाँ पे डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।